ये है पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का केंदुली गांव। माना जाता है कि यहाँ सन 1170 में संस्कृत कवि जयदेव का जन्म हुआ। वही जयदेव जो गीत गोविंद के अमर रचयिता हैं। हर साल यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर जयदेव की स्मृति को समर्पित एक विशाल मेला लगता है। আমার নাম হচ্ছে ক্ষুদিরাম দাস। তাই আমার ঢোলের বাজনা হচ্ছে পাঁচ পুরুষ চলছে বংশগত বাজনা। আমার এই ঢোল আমার পাঁচ পুরুষ বংশগত বাজনা। এই ঢোলের বাজনা যেমন বাবা আমাকে শিখিয়েছে, আমার ঠাকুরদাদা শিখিয়েছে, আমার বাবাকে এরকম পরস্পর হয়ে আসছে পাঁচ পুরুষ। তাই ঢোলেতেও আমার নাম, ঢোলেতেও বলে যে আমার নাম ক্ষুদিরাম দাস, আমার নাম ক্ষুদিরাম দাস। তাই ঢোলেও বলছে আমার নাম ক্ষুদিরাম দাস। আমার বাড়ির ঠিকানা হচ্ছে, বাড়িটা বলা দরকার, বাড়ি আগে ছিল যশপুর, এখন বাস করছে গোপীনাথপুর। তাই ঢোলে বলছে যশপুর গোপীনাথপুর বাড়ির ঠিকানা। সমুদ্রগড় রেলবাজারে গেলি যে ক্ষুদিরাম দাসের বাড়ি কোথায়, সবাই বলবে যে গোপীনাথপুর বাড়ি। তাই ঢোলে বলছে যশপুর গোপীনাথপুর। গোপীনাথপুর। ঢোলে বলছে কয়লার গাড়ি ছিল আগে, 40-45 বছর আগে কয়লার গাড়ি ছিল। তখন কিন্তু কারেন্টের গাড়ি ছিল না বাবা, তখন আমরা যেতাম সব কয়লার গাড়িতে। তাই কয়লার গাড়ি কাটোয়া থেকে ছাড়লে হাওড়ায় কিভাবে যেতাম আমরা, তো সেই কয়লার গাড়ির সাউন্ডটা আমার ঢোলের মাধ্যমে আমি তুলে ধরছি। কি বলছে? বলছে হাওড়া যায়, হাওড়া যায় টাকা পায়, হাওড়া যায় টাকা পায়, হাওড়া যায় টাকা পায়। এটা হচ্ছে কয়লার গাড়ির সাউন্ড। গাড়ি ছেড়েছে, হাওড়া যাচ্ছে, কিভাবে হাওড়া গিয়ে দাঁড়াবে সেটাও দেখবেন। केंदुली में कई मंदिर, आश्रम और आध्यात्मिक केंद्र हैं, जहां वैसे तो वर्ष भर श्रद्धालु और साधक प्रवास करते हैं, लेकिन मेले के अवसर पर यहां के आश्रमों और आखड़ों यानी अखाड़ों में बाउल साधकों और गायकों की सैकड़ों मंडलियां भक्तिमय संगीत में लीन रहती हैं। তুমি আমার সঙ্গে থেকে কেন করো চালাকি, তুমি আমার সঙ্গে থেকে কেন করো চালাকি। তোমায় খুঁজে হয়ে হয়রান, তোমায় খুঁজে হয়ে হয়রান করেছি ডাকা ডাকি। তুমি আমার সঙ্গে থেকে কেন করো চালাকি। জানতে পেরে কি লাভ হলো, যে দুঃখ ছিল সেই দুঃখ রইল। এখন বিপদ ঘনিয়ে এলো, দেখা দেখি সব ফাঁকি। তুমি আমার সঙ্গে থেকে কেন করো চালাকি, তুমি আমার সঙ্গে থেকে কেন করো চালাকি।
বসে থাকায় আর ভালো নয়, পিয়া রূপে দাও পরিচয়, তবে অভিষ্ট সিদ্ধ হয় মনে মনে দেরু পাখি। তুমি আমার সঙ্গে থেকে কেন করো চালাকি, তুমি আমার সঙ্গে থেকে কেন করো চালাকি। এক আনন্দ পাই কি প্রাণে, যতক্ষণ কাম প্রেম না আনে, এক আনন্দ পাই কি প্রাণে, যতক্ষণ কাম প্রেম না আনে, তখন কি চন্দ্র প্রখস্থানে মিলন হতে রয় বাকি। তুমি আমার সঙ্গে থেকে কেন করো চালাকি, তুমি আমার সঙ্গে থেকে কেন করো চালাকি। জব্বার সেরা তুল চরণে বারে বারে কল্পনায় এনে, প্রেম আবির সঙ্গপনে, প্রেম আবির সঙ্গপনে ঢেলে দেয় যা রয় বাকি। তুমি আমার সঙ্গে থেকে কেন করো চালাকি, তুমি আমার সঙ্গে থেকে কেন করো চালাকি। তোমায় খুঁজে হয়ে হয়রান করেছি ডাকা ডাকি, তুমি আমার সঙ্গে থেকে। विश्व का हर मनुष्य के लिए हम लोग प्रेयर करते हैं इधर, तो सब अच्छा रहे, आनंद में रहे। इसी कारण ये संक्रांति दिन का दिन में हम लोग इसका काम करते हैं। ये बनाते हैं रंगोली, उसके साथ साथ सब साधु संत लोग आएगा अभी, तो ये ख़त्म हो जाने के बाद ये सब आ जाएगा, आके इसको यहाँ कीर्तन होगा, और कीर्तन के साथ साथ ये मेला का ओपनिंग, उद्घाटन, शुभ उद्घाटन का ये काम होगा आज। এই মেলার মূল বৈশিষ্ট্য হলো বাউল। सारा पश्चिमबंग থেকে इस मेले की मूल विशेषता बाउल है। बाउल पूरे पश्चिम बंगाल से बाउल साधक और वैष्णव यहाँ आ जाते हैं। आजकल तो हम लोग फकीर लोगों का भी स्वागत करते हैं। बाउल की मूल प्रस्थापना मानवतावाद है। बाउल कोई धर्म नहीं है, न हिंदू, न मुसलमान, न जैन, न ईसाई। बाउल बस मानव धर्म है, प्रेम धर्म है। संक्षेप में बाउल दर्शन यही है। বাউল হলো মানব ধর্ম, প্রেম ধর্ম, এটাই হলো বাউলের দর্শন।
बंगाल में जहाँ बाउल गायक रहते हैं उस स्थान को आखरा या आखरा आश्रम कहते हैं। देश भर के बाउल गायक शांति निकेतन के नज़दीक बोलपुर में अजय नदी के पास जयदेव मंदिर के बगल में इस केंदुली मेले में भाग लेने आते हैं। ये मेला 14 दिनों तक चलता है। এই আত্মদর্শন বা আমাদের যে জয়দেবের অনুষ্ঠানে আসছে जयदेव मेले में आने की वजह आत्मदर्शन है। जैसे मानव कल्याण के लिए समाज, अर्थनीति के लिए व्यापार उद्योग, वैसे ही आत्मदर्शन के लिए हमारी देह होती है। साधु गुरु लोगों ने आत्मदर्शन करते हुए परिभाषा का आश्रय लिया। परिभाषा 5 प्रकार की होती है। वैज्ञानिकों के लिए मूलक परिभाषा, धार्मिक लोगों और साहित्यकारों के लिए रूपक परिभाषा, तर्क विज्ञानियों के लिए उपमा परिभाषा, इतिहासकारों के लिए चारित्रिक परिभाषा और कवियों के लिए छद्मनाम परिभाषा। सारे बाउल गानों की रचना रूपक परिभाषा में हुई है। धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जो पहलू बहिर्मुखी है वो राजनीति है, जबकि धर्म अंतर्मुखी यात्रा है। साधु गुरु रूपक परिभाषाओं से हमारी दृष्टि अंतर्मुखी करने की कोशिश करते हैं। जैसे लालन फकीर ने कहा, जो पद्महीन सरोवर में जाता है उसे ही अमूल्य निधि प्राप्त होती है। ये पद्म अंतर्दृष्टि का केंद्र होता है। योगियों के यहाँ इसी को चक्र कहते हैं। मार्फती लोग इसे लतीफा बुलाते हैं। सहज घराने में ये पोटे होती हैं। अंग्रेजी में यही ग्लैंड्स हैं। पद्म क्यों? मूलाधार क्या है? पूरे शरीर की 20,000 तंत्रिकाएं मूलाधार के साथ जुड़ी हुई हैं। मूलाधार कभी 4 दल और कभी 6 दल का होता है। रूपक परिभाषा में इसे ही कुल कुंडलिनी कहा जाता है। यही कुल कुंडलिनी ही शरीर की ऊर्जा का केंद्र है। रूपक परिभाषा में जो दल है, मूलक यानी विज्ञान की परिभाषा में वही ऊर्जा है। हमारा ये शरीर अधिक से अधिक 1100 यूनिट ऊर्जा धारण कर सकता है। हमारा सर सहस्त्रदल पद्म यानी 1000 यूनिट ऊर्जा, कपाल शतदल यानी 100 यूनिट ऊर्जा। योग या प्राणायाम से इसी को नियंत्रित करते हैं। বিভিন্ন মহত্রা, বিভিন্ন মেডিটেশন বা ধ্যানের বিভিন্ন প্রসেস বলে গিয়েছেন। ये बाउल जो है, ये हम लोग का जो साधना है, ये पूरा जुगल प्रेम है।
एक लड़का और एक लड़की का, एक नारी का और एक पुरुष का जुगल प्रेम है। और ये जुगल प्रेम में अगर आप एकदम फंस जाओगे, एकदम आप विलीन हो जाओगे, तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। वो दर्शन मिलेगा, वो प्रकृति का जो रूप है वो अगर आप खुद में अगर आ जाएगा तो उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। আমি जुगल रसेर रसिक हुए, मैं जुगल रस का रसिक हूँ, इसलिए जुगल की नाव चलाता हूँ। माने हम लोगों का एक साथ जब मिलन होता है, इस मिलन के दौरान हम एकात्म होकर साईं की दर्शन करते हैं। इस गाने में कहा जा रहा है कि रज और बीज की भूलन के समय हम लोग जुगल को साथी बनाते हैं। बाउल साधना में रज और बीज का महत्वपूर्ण स्थान है। नारी को जब 3 दिनों का रूप आता है तब वो पूर्णता प्राप्त करती है। इस समय उसे चंद्र दर्शन होता है। यही बाउल साधना करने का मुख्य समय माना जाता है। इसी जुगल प्रेम के भीतर है हमारी संपूर्ण प्रेम की भावना। इसी जुगल प्रेम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। এই जुगल प्रेम के নিয়েই আমরা চলছি। बाउल एक प्रकार का लोक गायन है। इसका गायन करने वाले को बंगाल में बाउल कहते हैं। থেকে বড় কথা হলো এখানে দূষণমুক্ত করার জন্য। देखिए, इस मेले को दोषमुक्त करने की कोशिश की गई है। नशे या हर तरह के प्रदूषण से इसे मुक्त रखा गया है। आप इस समय जहाँ हैं वहाँ साधु गुरु के अलावा अनेक संगीत प्रेमी लोग रहते हैं और अभी भी रह रहे हैं। गीत गोविंद के रचयिता आदि कवि जयदेव के बारे में ये कहा जाता है, एक बार अस्वस्थ होने की वजह से वो मकर स्नान के लिए संगम तक नहीं आ पा रहे थे। तब उनके लिए गंगा उल्टी बहकर अजय नदी में यहाँ तक आ गई। इस बारे में एक कहानी और भी है। जयदेव एक पद रचना कर रहे थे, उसकी आखिरी पंक्ति वो नहीं लिख पा रहे थे। কথাটি ছিল স্মর গরল খণ্ডনম মম শিরসি মণ্ডনম देहि पदम पल्लव मुदारम। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने स्वयं आकर वो पद लिखा। इस मेले में बाउल फकीरों और कीर्तनकारों के करीब 600 अखाड़े हैं। जहाँ मंदिर है वहाँ एक बड़ा स्टेज बनाया जाता है। यहाँ पर मछुआरों की एक कम्युनिटी भी है जिसके लिए मछली पकड़ने के जाल और उससे जुड़ी जरूरी चीजें बिकने आती हैं। वैसे ये मेला बाउल फकीरों के गानों के लिए ही जाना जाता है। सबথেকে বড় গুরুত্ব হলো এই সাধু গুরু বৈষ্ণবের একটা মিলন মেলা, যেখানে বাউল কীর্তন ফকিরি ইত্যাদি গান শোনার জন্যই প্রধানত মানুষজন এখানে জড়ো হন সকলে।
प्रदेश में इन्हें फकीर या जोगी भी कहा जाता है। सामान्य तौर पर आउल, बाउल, फकीर, साईं, दरवेश, जोगी और भाट बाउल के ही रूप हैं। इन सभी में एक समानता है कि ये ईश्वर की भक्ति में इस तरह लीन होते हैं कि इन्हें बाउल, बावला या पागल भी कहा जाता है। এই ঘরখানায় কে বিরাজ করে আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে জনম ভরিয়া একদিনও না জনম ভরিয়া একদিনও না একদিনও না দেখলাম তারে আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে নরে চরে ঈশান কোণে দেখতে পাইনে দয়াল এই নয়নে নরে চরে ঈশান কোণে দেখতে পাইনে দয়াল এই নয়নে হাতিরি কাছে যার ভবের হাট বাজার হাতিরি কাছে যার ভবের হাট বাজার ধরিতে গেলে হাতে পাইলে তারে আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে সবাই বলে প্রাণ পাখি শুনে চুপে চুপে থাকি সবাই বলে প্রাণ পাখি শুনে চুপে চুপে থাকি জল কি হুতাশন মাটি কি পাবন জল কি হুতাশন মাটি কি পাবন কেউ বলে না ওটা নির্ণয় করে আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে আপন ঘরের খবর হয় না বাঁচা করি দয়াল পরকে চিনা আপন ঘরের খবর হয় না বাঁচা করি দয়াল পরকে চিনা লালন বলে পর্বতে পরমেশ্বর লালন বলে পর্বতে পরমেশ্বর সে কেমন রূপ আমি কি রূপ দেখলাম না রে আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে জনম ভরিয়া একদিনও না জনম ভরিয়া একদিনও না একদিনও না দেখলাম তারে আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে আমার ঘরখানায় কে বিরাজ করে এই উৎসবটা হচ্ছে বাউল ফকিরদের উৎসব সঙ্গে অসংখ্য সাধারণ মানুষ যোগ হয়েছে ये दरअसल बाउल फकीरों का मेला है जिसमें हर साल असंख्य सामान्य लोग भाग लेते हैं
लोग यहाँ स्नान करते हैं, श्रद्धा भाव से यहाँ प्रवास करते हैं। मेले के अलावा खास तौर पर बाउल और कीर्तन का बोलबाला रहता है। कुछ लोग तो यहाँ कुछ पाने, सीखने और जानने आते हैं और कुछ लोग गाना सुनकर आनंद रस लेने आते हैं। बाउल दर्शन बहुत विस्तृत विषय है और इसे संक्षेप में नहीं समझाया जा सकता है। ये साधना का विषय है। शरीर के अंदर वायु चलती है और उस वायु को जो पकड़ पाते हैं वही बाउल कहलाते हैं। ये साधना दो प्रकार की होती है, एकल साधना और युगल साधना। युगल साधना में वायु का नियंत्रण बेहद जरूरी है। काम हमारी स्वाभाविक प्रकृति है, इसका दमन करते हुए और मुक्ति साधना के मार्ग की ओर दोनों लोग मिलकर परम आनंद उठा सकते हैं। गुजरे दौर के बाउल साधकों सिराज साईं, लालन फकीर, दुद्दू शाह, अनंत गोसाई, हावरे गोसाई, विजय सरकार, राधा रमन, शाह अब्दुल करीम, अब्दुल जब्बार और भबा पागला का गायन सुना और सुनाया जाता है। নিয়ত সঙ্গ করতে হবে, সঙ্গের মাধ্যম দিয়ে তার হচ্ছে আস্তে আস্তে তার যে আধার, সেই আধার অনুযায়ী গুরুদেব বা গুরু ওনাকে দেবেন। নর যে অমর হবে কীর্তি রবে, খাপারে জগতে থাকবে ঘোষণা, আমরা ভাই নরাকারে বেড়াই ঘুরে, ওগো নরের স্বভাব কেউ জানি না, আমরা ভাই নরাকারে। নর যে অমর হবে কীর্তি রবে, খাপারে জগতে থাকবে ঘোষণা, আমরা ভাই নরাকারে বেড়াই ঘুরে, ওরে নরের স্বভাব কেউ জানি না, আমরা ভাই নরাকারে। ইন্দ্রিয়কে করে তেজা, ওরে হোগে রাজা, ওরে সাজার তো বাকি থাকে না, ইন্দ্রিয় তো পেতে হলে কোন পথেতে, ইন্দ্রিয় তো পেতে হলে কোন পথেতে, কাপারে হবে যেতে তা জানি না, আমরা ভাই নরাকারে বেড়াই ঘুরে, ওরে নরের স্বভাব কেউ জানি না, আমরা ভাই নরাকারে। দেখো ভাই নিদ্রা আহার ভয় মৈথুন, এই কয় স্বভাবে করে কানা, এরা সব নরের পথে দেয় না যেতে, এরা সব নরের পথে দেয় না যেতে, খাপারে ফাঁদ পেতে আছে চারজনা, আমরা ভাই নরাকারে বেড়াই ঘুরে, ওরে নরের স্বভাব কেউ জানি না, আমরা ভাই নরাকারে। নরাকারে কি যে আছে ওরে যে জেনেছে, নরাকারে কি যে আছে যে জেনেছে, ওরে সে পেয়েছে সান্ত্বনা, নরাকারে কি যে আছে যে জেনেছে, খাপারে বাকি তো রেখে যাবে না, আমরা ভাই নরাকারে বেড়াই ঘুরে, ওগো নরের স্বভাব কেউ জানি না, আমরা ভাই নরাকারে। নর যে অমর হবে কীর্তি রবে, কাপারে জগতে থাকবে ঘোষণা, আমরা ভাই নরাকারে বেড়াই ঘুরে, ওরে নরের স্বভাব কেউ জানি না, আমরা ভাই নরাকারে। পুরাণে কয় মিথ্যা তো নয়, কাপারে দধিচিত নর একজনা, সে নরের প্রভাব এত দেবতা যত, সে নরের প্রভাব এত দেবতা যত, খাপারে শিক্ষা নিত গুণপনা, আমরা ভাই নরাকারে বেড়াই ঘুরে, ওরে নরের স্বভাব কেউ জানি না, আমরা ভাই নরাকারে, আমরা ভাই নরাকারে, আমরা ভাই নরাकारे। ऐसा माना जाता है कि बाउल गायन की शुरुआत बांग्लादेश से हुई। वहाँ इसे बाउल या पागल कहा जाता है। ওরে ভাই বলো বন্ধু বলা কেউ নাই রে, কার আমার মন আমার বন্ধু নাই রে, আর দয়াল বন্ধু নাই রে, আরে প্রেম বাজারের প্রেমের মধু লাভ করিল ফকির সাধু, প্রেম বাজারের প্রেমের মধু
লাভ করিল ফকির সাধু শেষের দিনে কেটে পড়লাম বন্ধু নাই রে আর দয়াল বন্ধু নাই রে আর। বাউলের সঙ্গীত হলো তার মনের ভাব। बाउल संगीत मन के आंतरिक भावों को बाहर लाना है, संगीत के माध्यम से मन के भाव प्रकाशित करना। সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে সে প্রকাশ করে। बाउल एक वैश्विक पहचान है। ये धर्म, संप्रदायों और जातियों के बंधन से मुक्त है। ये हिंदू मुस्लिम कोई भी हो सकता है। Baul is nothing but a philosophy, but a lifestyle. It's a life statement. Who used to believe that their body is their own existence and their most great God, they live within the body, and maybe they are by belief, by religion, they may be Hindu, Muslim or Buddhist or Christian, but they believe that their Almighty God stay in their body, in their soul. Basically, without religion, without caste, and basically it's a love, and love within human and the human and the God. It's a love is a different concept. Love does not make sense that it has to connect it with a person to person or male or female. It can be love with the sky, love with the greeneries, love with the mountain, love with the water, and ultimately love with the Almighty God. बाउल का रहन सहन, पहनावा और जीवन व्यतीत करने का तरीका वैष्णव धर्म के बहुत करीब होता है। ज़्यादातर बाउल वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। वैष्णव धर्म में पुरुष को वैष्णव और स्त्री को वैष्णवी कहते हैं। बाउल एक ऐसा गायक होता है जो कभी भी अपना जीवन 1-2 दिन से ज़्यादा एक स्थान पर व्यतीत नहीं करता। ये गांव-गांव जाकर भगवान विष्णु के भजन और लोकगीत गाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं।
लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर वैष्णवी बाउल गाकर भिक्षा मांगे, परंतु बाउल गाकर ही भिक्षा मांगता है। वैष्णवी विष्णु के पुजारी होते हैं। वैष्णवी खंजनी, करताल और खोल बजाकर भिक्षा मांगते हैं। একবার বলো রে মধুমাখা হরি নাম বলো রে, একবার বলো রে এই মধুমাখা কৃষ্ণ নাম বলো রে। এই নামের গুণে পাপি তাপি, এই নামের গুণে পাপি তাপি উদ্ধার হয়ে গেল রে। মধুমাখা কৃষ্ণ নাম বলো রে, একবার বলো রে। वैष्णवी बाउल के परिधान सफेद होते हैं। वो सफेद लुंगी, कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाउल का चित्त भी सफेद कपड़ों के समान शांत, पवित्र और पावन होता है। लेकिन बाउल का परिधान सफेद लुंगी, गेरुआ कुर्ता और पगड़ी, गले में माला और ललाट और कंठ पर मिट्टी और चंदन के मिश्रण का तिलक होता है। बाउल खास तौर पर एक तारा, डुग्गी, गुबगुबी पैरों में घुंघरू बांधते हैं। आनंद और प्रेमेर बन्या आनंद धारा এই ভুবন যুগল রসে ভাসে আমার মন, সদাই যুগল রসে ভাসে আমার মন। আমি যুগলের রসের রসিক হয়ে তাই যুগলেরই নৌকা বে। আমি যুগলের রসের রসিক হয়ে তাই যুগলেরই নৌকা বে। তাই যুগলে যুগল সাজিয়ে, তাই যুগলে যুগল সাজিয়ে যুগলে যুগল মিলন, যুগল মিলন। যুগল রসে ভাসে আমার মন, সদাই যুগল রসে ভাসে আমার মন। ওই রচে বীজে মাখামাখি আমি যুগলকে করেছি সাথী। ওই রচে বীজে মাখামাখি আমি যুগলকে করেছি সাথী। তাই যুগল আমার হয়েছে সাধন, তাই যুগল আমার হয়েছে সাধন। যুগলে বুঝেছে মন, বুঝেছে মন। যুগল রসে ভাসে আমার মন, সদাই যুগল রসে ভাসে আমার মন। আহা, হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল, হরি বল। बाउल अपना जीवन ईश्वर की भक्ति और मानव की भलाई में व्यतीत करते हैं। बाउल को मोह माया, धन दौलत, घर बाहर की कोई चिंता नहीं होती। বসে গাছের ডালে
পাখিটাই উড়ে বেড়ায় নিবে না তেল। আমার সেই পাখিটা ধরতে পারলে খেপারে ওরে সেই পাখিটা ধরতে পারলে ওরে চার যুগের এক মরা মাঝে কি চমৎকার ফল গো ওরে সেই গাছে কি চমৎকার ফল গো। ऐसा सभी बाउल गायकों का मानना है कि बाउल गायन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में केंदुली नाम के इसी स्थान से हुई जो वीरभूम में आता है। इसको अब बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार और कवि जयदेव के नाम से जाना जाता है। গেছে চলে যায় আছে তা अजय नदी के पास केंदुली मेला लगने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि पौष संक्रांति के दिन अजय नदी का पानी सुबह कुछ क्षणों के लिए उल्टा बहता है। अजय नदी काटवा वर्धमान नाम के स्थान पर भागीरथी नदी से मिलती है, जो गंगा नदी का ही एक भाग है। इस समय या इस दिन नदी में स्नान करना गंगा में स्नान करने के समान होता है। आज ज्यादातर बाउल बोलपुर जिला वीरभूम के आसपास पाए जाते हैं, लेकिन बाउल गायन बांग्लादेश में भी खूब जाना और गाया जाता है। जो बाउल का जो संगीत है, जो मेला है, हम उधर पार्ट ले रहा हूँ और यहाँ का जो वैराइटीज़ जगह से बाउल सिंगर आते हैं और बहुत बाहर से भी सिंगर लोग आते हैं, तो उसका गाना हम सुनते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन होते हैं, तो अच्छा लगता है। और वो जो जयदेव मेला है वो पोष संक्रांति से स्टार्ट होते हैं और पोष संक्रांति हमारा इंडिया और हमारा इलाका में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और लोकल फेस्टिवल हर गांव में पोष संक्रांति माना जाता है। और पोष संक्रांति
आज पौष संक्रांति है, तो ये पौष संक्रांति हमारा उधर बहुत पालते हैं। हम पीठा पुली करते हैं और हमारा एरिया में टूसू एक देवी है, टूसू देवी को मानते हैं। उसके लिए गाना भी हम करते हैं। आकाल बछर आइलो झड़ उड़ाइन दिल चालेर खड़। आकाल बछर आइलो झड़ उड़ाइन दिल चालेर खड़। खुदकुड़ा ढुके गेल ढडरे, खुदकुड़ा ढुके गेल ढडरे, मास पिठा हबे मकरे। खुदकुड़ा ढुके गेल ढडरे, खुदकुड़ा ढुके गेल ढडरे, मास पिठा हबे मकरे। आकाल बछर आइलो झड़ आरे उड़ाइन दिल चालेर खड़। आकाल बछर आइलो झड़ आरे उड़ाइन दिल चालेर खड़। खुदकुड़ा ढुके गेल ढडरे, खुदकुड़ा ढुके गेल ढडरे, मास पिठा हबे मकरे, मास पिठा हबे मकरे। अनेक बाउल गायक इस गायन के माध्यम से ही जाने जाते हैं, जिनमें बांग्लादेश के लालन फकीर भी हैं, जिनके गायन से भारत के ख्याति प्राप्त लेखक रविंद्रनाथ टैगोर भी प्रभावित हुए थे। बाउल लालन फकीर ने अंग्रेजों और दुष्ट जमींदारों के खिलाफ भी गायन किया था। वैदिक जुगेर जो तंत्र साधना मूर्ति पूजा। बाउल मेले और भी कई जगहों पर लगते हैं। अग्रदीप, घोषपाड़ा, नदिया में सारा मेला, कदम खाली मेला, जयघाटा मेला और घुरनी मेला। लालन फकीर तो बाउलों के बाउल हैं। लालन साई की सांप्रदायिक एकता की भावना को मैंने अपने कंधों पर उठा रखा है। लकड़ी से मैं लालन फकीर की मूर्ति बनाता हूँ और इन मूर्तियों को लेकर मेले मेले फिरता हूँ। बस एक ही धुन है, मानव प्रेम की भावना का प्रसार करना, उसे जन जन तक पहुँचाना। राष्ट्र संघ ने बाउल गानों की संस्कृति को मानव प्रेम का आधार बताया है। लालन विश्व प्रेम के सूत्रधार हैं और आज के अशांत समय में उनकी शिक्षाएं बहुत ही प्रासंगिक है, इसलिए लालन की चर्चा बार बार होनी चाहिए। लालन ने वैदिक समय की तंत्र साधना और मूर्ति पूजा से बाहर आकर वृहत्तर मानव समाज के बीच प्रेम का संदेश जगाया है। मानुष के सरल भावे बुझे मानुषेर संगे साधना करे निजेके तैरी। बाउल गायन में जिन वाद्यों का इस्तेमाल होता है वो बहुत साधारण और न्यूनतम होते हैं। এই যন্ত্রটা মূলত আদি আমাদের বাউল ঘরানার যন্ত্র। ये इंस्ट्रूमेंट बाउल घराने का आदि यंत्र है। इसके वैसे तो कई नाम हैं। इसे हम आनंद लहरी कहते हैं क्योंकि ये आनंददायी है। इसे हम दाब गुबी भी कहते हैं, दाबू भी कहते हैं। साथ ही साथ इसे हम खमक भी कहते हैं। तो ये तीनों नामों से इसे हम बुलाते हैं। যন্ত্রটা মূলত আমরা বলে থাকি। আর এই যন্ত্রটা বলতে পারেন একটা পারকাশনেরও মানে একটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট একটা যন্ত্র, কারণ এই যন্ত্র परकशन का ये अद्भुत यंत्र है क्योंकि इसमें सुर भी है और ताल भी। अगर किसी वजह से तबला ना हो तो ये सुर के साथ साथ रिदम सेक्शन का काम भी करता है। যন্ত্রটা একই সাথে আপনাকে সুরেরও কাজ করে দেবে আর একই সাথে সাথে আপনাকে রিদিমেরও কাজ করবে, রিদিম সেকশনের কাজ। এইটাই, এটা মূলত দুটো তারের যন্ত্র। इसमें मूलतः दो तार होते हैं। इसे घट कहते हैं। पहले ये घट मिट्टी का होता था, लेकिन अब ये पीतल का भी होता है। यहाँ पर दो तार हैं जो एक ही लेवल पर बंधे हैं। एक सा और दूसरा सा पास पास ही है। এই ঘরটাকে আর এখানে দুটো তার আছে, দুটো তারই একই লেভেলে বাঁধা হয়। এই দুটো তারকে একই সাথে মানে একটা সা আর নিচের সা দুটো একই সা পড়বে।
দিয়ে সুর করে তবে গিয়ে মানে দুটোই একই লেভেলে বাজবে আর কি। আর এইটা হচ্ছে গিয়ে খোলটা, এটা জেনারেলি আম কাঠের হয়। ये खोल है जो आम की लकड़ी, नीम, कदम या कटहल की लकड़ी से बनता है। কাঁঠাল কাঠেরও হয়, গামারও হয়, গামার কাঠের হয়। এই গামার কাঠটা সব থেকে আর কি গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এই কাঠটার, আর আওয়াজ বলুন বা যে কোনো জিনিস কিন্তু খুবই ভালো হয়। এই হচ্ছে মূলত খমকটা। এটার নাম হচ্ছে আগে বলতো খুঞ্জুরি, এখন বলা হয় ডুবকি। ये डुबकी है, पहले इसको खंजड़ी कहते थे। ये एक बेसिक वाद्य है, ये मंजीरे की भी कमी पूरी करता है। इसे लकड़ी और चमड़े से बनाते हैं, इसे हम खुद ही बना लेते हैं। मोची की दुकान से चमड़ा लाकर उसे भिगोते हैं और इस पर चढ़ाकर सुखा लेते हैं। बजाने से पहले अगर ये बहुत चढ़ा हुआ हो तो पानी लगाकर सुर में ले आते हैं। সুরটা রাখতে হয়, নাহলে কড়া হয়ে যায়, আবার একটু জল দিতে হয়, তাহলে আবার একটু নরম হয়। एक्चुअली एकतारा तो एकतारा একটা জীবনী আছে। बाउल का जो ये एक तारा है उसमें एक तार और ये दो भुजाएं होती हैं। ये इड़ा, पिंगला और ये तार मतलब सुषमना। लालन साईं ने ये यंत्र हमको दिया है। जो लोग एक तारा बनाते हैं और जो इसको बजाते हैं वो कभी मन में बुरे भाव नहीं ला सकते। আর এটা হচ্ছে দোতারা। वैसे तो इसे दो तारा कहते हैं। पहले ये एक तारा से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे दो तारा हो गया। लेकिन दो तारा होते हुए भी इसमें 5 तार हैं। बोम, खाद, सुर, जिल। सुर के लिए 2 तार हैं। हमारे गुरु ने यही बताया, सा पा सा मा। এটা হচ্ছে সা পা সা মা। वैसे तो दूसरे वाद्य यंत्र या तो सुर के लिए होते हैं या फिर ताल के लिए, लेकिन इस दोतारे में सुर भी हैं और ताल भी। এটাই হচ্ছে সুরও আছে, তালও আছে, তাই এর নাম হচ্ছে দোতারা। इन बाउल फकीरों की गीत सुनकर श्रोता आनंद विभोर हो जाते हैं। बाउल समुदाय का मत है कि मनुष्य का अंतःकरण करुणा, उदारता, सुंदरता, सहिष्णुता, स्नेह आदि सद्गुणों और आनंद, आलोक और माधुर्य से परिपूर्ण है। बाउल सलाह देते हैं कि हृदय के आलोक केंद्र से यथार्थ रूप से परिचित होकर उसे प्रज्वलित करने की साधना का प्रयास करना चाहिए।